السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں حالات. میں ہوں نوشیروان اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی سعید چودھری صاحب. سر کیسے ہیں؟ الحمدللہ فرسٹ ٹھیک ہیں کلاس. سر. کل پنجاب کے تمام 11 سینیٹرز بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں. جی تو میں آپ سے پوچھنا ہی چاہوں گا کہ یہ جادوگری کس کی ہے؟ اگرچہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ میں نے خرید و فروخت کی کوشش ناکام بنا دی ہے. جی وزیر اعلیٰ صاحب نے جو کوشش ناکام بنائی ہے تو وہ اگر اس کی وضاحت بھی فرما دیتے تھوڑی سی کہ انہوں نے کیا کیا اقدامات کیے جس کے باعث یہ خرید و فروخت جو ہے ہارس ٹریڈنگ جو ہے وہ رکی ہے. وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے یہ کس کی جادوگری ہے. بالکل یہ تو کمال ہے چودھری پرویز الہی کا. اور اس کو شروع سے ہی یہ کہا جاتا تھا پرویز الہی فارمولہ. بالکل. اور یہ کہا جا رہا تھا کہ پرویز الہی صاحب کو عمران خان صاحب نے یہ ٹاسک دیا ہے تو اس میں کوئی ادھک حقیقت ہے, 100% حقیقت نہیں ہے. اس میں آگے جا کے بات کروں گا. اس میں دو تھیوریز جو ہیں وہ میدان میں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی پہلی دفعہ پاکستان میں نہیں ہوا کہ بلا مقابلہ یعنی جتنی سیٹیں ہیں اتنے ہی کینڈیڈیٹ ہیں اور وہ تمام مظاہرے میں کامیاب ہو گئے. اس میں 5 نشستیں مل گئی ہیں پی ٹی آئی کو, 5 مل گئی ہیں نون لیگ کو اور 1 وہ نکال کے لے گئے ہیں کاسمندوں کے ساتھ کامل علی آغا کی پرویز الہی صاحب. بالکل. اس سے پہلے جب 85 میں اسمبلیاں بنی ہیں ماشاء اللہ نیم جمہوریت سے آ گئی تھی. اس وقت جب الیکشن ہوئے تھے تو سب سے زیادہ خرید و فروخت ہوتی ہے کے پی کے میں. اس وقت کے پی کے میں گورنر تھے لیفٹیننٹ جنرل فضل حق. ٹھیک. انہوں نے بھی وہاں جو اسی طرح کا معاملوں کے بلا مقابلہ ہوئے تھے اور خرید و فروخت وغیرہ انہوں نے رکوا دی تھی. لیکن پنجاب والے اور کے پی کے والے ماضی کی جو بات کر رہے ہیں اس میں فرق یہ ہے کہ ان کے پاس تو ڈنڈا تھا, جنرل صاحب تھے, جنرل تھے. ان کے پاس ڈنڈا نہیں تھا. انہوں نے اپنی سیاسی بصیرت اور سیاسی چالوں سے وہ کیا ہے کہ طارق کے ذریعے نون لیگ کے ساتھ رابطے میں تھے, زرداری صاحب کے ساتھ رابطے میں تھے, پھر سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے ساتھ بھی ان کے معاملات تھے. وہ اتار چڑھاؤ آیا بالکل لیکن آخر کار وہ اس میں کامیاب رہے. اب جو 2 تھیوریز کی میں بات کر رہا ہوں کہ 2 تھیوریز چل رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ عمران خان ملے تھے کہ انہوں نے کوشش کی کہ ایسے ہو جائے, یہ تو پیغام بھی بھجوایا تھا انہوں نے. بالکل بالکل بالکل. لیکن اس سے زیادہ یہ کسی اور کی خواہش تھی. کس کی؟ اچھا کسی اور کی خواہش تھی. مکمل کر دیں ہو سکتا ہے میں بتا دوں, ہو سکتا ہے میں نہ بتاؤں. ٹھیک ہے نا. یہ کسی اور خواہش تھی. اصل میں یہ ایک ان کا سیاسی امتحان تھا پرویز الہی صاحب کا. پرویز الہی صاحب شروع سے ہی اسٹیبلشمنٹ کے پسندیدہ ہیں. بالکل. ابھی چند روز کیا 1-2 دن پہلے چودھری شجاعت حسین کی بھی ملاقات ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. جب یہ سارا فارمولہ طے ہو گیا نا, فائنل ہوگی بات ساری کہ جناب یہ ہو جائے گا, وہ واپس لے لیں گے, یہ ہو جائے گا, تو چودھری شجاعت حسین کی بھی وہاں بات ہوئی ہے پنڈی میں. ٹھیک ہے. تو وہ پرویز الہی صاحب کے بارے میں ہم نے یہ پہلے بتایا تھا جب یہ عمران خان نے ان کو ٹاسک دیا تھا تو عمران خان کے ذرائع سے ہم نے یہ خبر دی تھی کہ انہوں نے کہا کہ اگر آخری بندہ بھی بچ جائے گا نا پارلیمنٹ میں صوبائی اسمبلی میں تو پرویز الہی میرا امیدوار نہیں ہوگا. اب پرویز الہی صاحب کو جو لوگ لانا چاہتے ہیں وہ شروع میں بھی لانا چاہ رہے تھے. ٹھیک. اس وقت بھی یہ عمران خان ڈٹ گئے تھے. بیچ میں آپ کو پتا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے اینکرز ہیں ان کے قریب بالکل ان سب نے ایک دفعہ شور مچا دیا تھا پرویز الہی آ گیا. یہ 1.5 سال پرانی بات ہے. بزدار کو ہٹانے کا فیصلہ. وہ عمران خان وہ فیصلہ نہیں کر رہا, وہ فیصلہ کسی اور نے کیا ہوا ہے. ٹھیک. اب عمران خان تو ان کو نہیں بنانے والے. ٹھیک. پرویز الہی بالکل. اب پرویز الہی صاحب جو ہے اپنی سیاسی بصیرت کا اظہار کریں گے کسی اور انداز میں. اب یہ والا تو انہوں نے ایک بندہ اپنا لے لیا نا 10 ووٹوں کے ساتھ ہی. ٹھیک ہے نا. 48 چاہیے تھے یا 50 چاہیے تھے تو 10 بندے تھے, وہ ایک پورا سینیٹر لے گئے. 2018 میں کامل علی آغا ان کے امیدوار تھے, وہ ہار گئے تھے اس وقت. بالکل. اب وہ چل گئے. اب وہ ایک واردات ڈالیں گے زرداری کے ذریعے. ٹھیک. وہ کریں گے کہ یوسف رضا گیلانی کے لیے وہ کہ ہاتھ پاؤں ماریں گے اور کمٹمنٹ یہ لیں گے کہ ہمیں
मेरी जो अगर वजारत आला का मैं गेम डालता हूँ तो आप नून लीग से कह के और मेरे साथ वो करके, तो मेरी खिदमत आपके लिए हाजिर है। बिल्कुल। और आप उसकी बस जो देना चाहें, इस तरह के बंदे हैं ना, दो लोग बात नहीं करते कि सौदा करो इधर रखो जनाब, थोड़ा दे दो, तोरी दे दो मेरे, इस तरह नहीं करते ये। इनके बात का एक स्टाइल है खास, इन्होंने अपना पैगाम पहुंचा दिया है। बिल्कुल। और उन हल्कों को भी ये साबित कर दिया कि यार मुझ में कुछ है, मैं नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों को राम कर सकता हूँ, ये मैंने करके दिखा दिया है। बिल्कुल, ये असल चक्कर है। ठीक, ये उस इम्तिहान में कामयाब हुए। बिल्कुल, ये इमरान खान का इम्तिहान नहीं था, ये मैं फिर बता दूं। ठीक है, इमरान खान के ख्याल में इमरान खान कहता जी खसमानो खाओ, हाँ सवाई नहीं छोड़ो, सिर्फ एक अब्दुल हफीज शेख वाली सीट मुझे चाहिए। बिल्कुल, वो तो उस पर फोकस किया। और ये भाई साहब जो हैं, आपको ऐसे गेम हो सकता है डाल दें कि हफीज शेख साहब नाकाम हो जाए। बिल्कुल, लेकिन इमरान खान आए हुए थे ना लाहौर में थे। हाँ, तो क्या किया उन्होंने लाहौर में? सर उन्होंने एक वो बिजनेस डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट मंसूबे का इफ्तिताह किया, अच्छा संग बुनियाद रखा। उस तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने 3-4 दफ़ा कहा कि ये इतना बड़ा मंसूबा है कि 6,000 अरब रुपए इकट्ठा करेगा। हाँ, आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो उनको कहना पड़ा कि यार क्या आप लोग जागते रहे? यार ये 6,000 अरब रुपए का वो कह रहे हैं इकट्ठे करेगा, जनरेट करेगा, और 1,300 अरब पहले मर लग जाएंगे। बिल्कुल, वहाँ उन्होंने अलीम खान को स्पेशल मुखातब किया कि खान साहब थानू तो पता है यार ये पैसे वाला मामला तो समझो ना किएगा। इमरान खान को ये नहीं पता कि ये लोग समझते हैं, खान साहब आप नहीं समझ रहे, ठीक है ना। इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो आप कह रहे हैं इन्वेस्ट, क्या पाकिस्तान में वो माहौल है इन्वेस्टमेंट वाला? इन्वेस्टमेंट के माहौल के लिए कि रॉ मटेरियल सस्ता हो, मजदूर सस्ते हो, और लागत कम आ रही हो, यानी बिजली वगैरह के जो गैस उसके बिल जो हैं वो कम हो। पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं है। आजकल एक बंदा जो 100 मीटर तैयार करता है $50 में बांग्लादेश में बैठ के, वो पाकिस्तान में $150 पे क्यों 100 मीटर कपड़ा बनाने या कोई सनत लगाने के लिए आएगा? इन्होंने पहले भी एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया था, अगस्त 2020 में इफ्तिताह किया था लाहौर में, बड़े बैनर से। आज भी बड़ा पूरा लाहौर भरा हुआ लग रहा है कि जनाब ये बैनर से तो पैसे निकलने हैं और निशेरवानी जेब पहुंच जाने हैं। अच्छा, ऐसा लग रहा है। ओके, जो अगस्त 2020 में इन्होंने किया था रिवर रावी प्रोजेक्ट। बिल्कुल, 1 लाख एकड़ पे एक नया शहर बनना। बिल्कुल, कहाँ है वो? वैसे पूछ रहा हूँ, बैंगलोर में था, ठीक है ना। और उसमें भी 8 अरब जो है वो जनरेट करने थे, और 36.5 अरब रुपए का वो डॉलर का वो मंसूबा था। इन्होंने तो NOC ही नहीं लिए हुए थे। हाँ, मुख्तलिफ अदारों से NOC लेने पड़ते हैं, माहौलियात से, ये वो फला। इवन ये कि जो ज़रूरी ज़मीन है उसको ग्रीन लैंड जो है, हाँ, उसको कैसे कन्वर्ट करना है कमर्शियल में या रेजिडेंशियल में, उसके लिए ये तो वही काम नहीं करता। अब हर दूसरे दिन हर एक महकमे को रोक देती है। आज फिर हाई कोर्ट ने कह दिया जनाब एक्वायर ना करो, आज फिर स्टे दे दिया उन्होंने। हाँ, यानी वो तो स्टे भी चल रहा है। यानी इस दौर में जबकि अदलिया की मोहब्बत जो है हुकूमत के साथ मुसल्लमा है, इतना बड़ा घपला है कि वो हाई कोर्ट से स्टे हो रहे हैं। और अब ये जो इन्होंने प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है, इसीलिए तालियां क्या लेने मारी उन्होंने, लिफ्ट नहीं करी। तालियां बच्चों की तरह यार। दूसरा मामला जो है ना, इमरान खान साहब ने आज यहाँ पे अरकान पार्लियामेंट से भी मुलाकात करनी थी, जो मेंबर हैं पंजाब के कौमी असम्बली के, और उसके लिए वज़ीर-ए-आला हाउस और गवर्नर हाउस से रब्ते किए जाते रहे। हाँ, वो यार वो काफी सारे लोगों ने लिफ्ट नहीं कराई। एक तो ये है ना कि गवर्नर जो है उनको तो रोक दिया है इलेक्शन में, बाबा जी तुझे बेच नहीं आ, थोड़ा रगड़ा निकल जाएगा, फायदा कोई। ठीक, वज़ीर-ए-आला उससे जो गए हैं, तो आपको पता है कि वो कितने नाराज है उधर लोग। इन्होंने रिश्वत देने की कोशिश की है, हमने बात की थी कल कि वो उनको मना यार MPs वगैरह को, MPs के MLA के साथ भी वही हल्के होते हैं ना, उन्हीं के बंदे होते हैं ना, जनूबी पंजाब वाले और लिया और ये वो वाले जो हैं। अब वो एक और खबर आ गई है कि वो DG खान के नहीं थे आपके, वो क्या नाम था उनका, दाऊद सुलेमानी साहब। हाँ, उनके हल्के में 137 किलोमीटर सड़कों की मंजूरी वज़ीर-ए-आला ने दे दी है कि भाई ये ले सड़कें बना ते रोड़ी के पैसे तू खा जी, मिट्टी ठेकेदार पा देगा।
लुक शुक का बंदोबस्त भी हो जाएगा। ये भाई इस तरह करने को फिर भी वो कहते हैं कि तकरीबन 7-8 बंदे ऐसे हैं जिनसे रब्ता नहीं हुआ। रब्ता ये कैसे हो सकता है कि वज़ीर आला रब्ता करना चाहे, ठीक है ना, वो सिर्फ वो अपनी जेब में मोबाइल लेके नहीं फिर रहा होता, पूरा दफ्तर होता है एमएलए का एक, PSP, ठीक है ना, PA वगैरह रखे होते हैं, सियासी तौर पर अपने वर्कर भी रखे होते हैं जो ना फोन कर रहे हैं वज़ीर आला होते हैं ना, बार बार काला आ रही है तो उसी भाई सुन लो, बिल्कुल, ठीक है ना। और वो पैगाम ऐसे नहीं देते होंगे कि ना हमारी बात करवा दें शेरवान से, वो कह रहे होंगे वज़ीर आज़म साहब का एक मैसेज पहुँचाना है, बिल्कुल, ठीक है ना। अब हमने पहले भी ये बात की हुई है कि मैंने तो कहा था ना 3-4 MLAs को मैं ज़ाती तौर पे मेरी बात हुई है, वो कहते हैं कि और इससे कि हम हाथ खड़ा करके भी वोट देने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल, इनके मुखालफिन को, PTI के मुखालफिन को। और अब तो वो तादाद बढ़ती जा रही है, और हमने बहुत पहले कह दिया था कि इमरान खान की गिरफ्त जो है ना पार्टी की उस तरह नहीं कमज़ोर होगी, लोग खुल्लम खुल्ला, क्योंकि उनको पता है कि आगे वोट शूट तो मिलना कोई नहीं, ठीक है ना। खुद शहबाज गिल की बात हमने की है, ठीक है ना, उन्होंने खुद भी ट्वीट किया, खुद की अगर भाई अगर टिकट नहीं मिलना तो फिर हमें क्यों मिले। अब जो चक्कर है वो चला रहे हैं ना, जो नाराज़गी शो कर रहे हैं, जो नाराज़गी शो कर रहे हैं, वो दूसरे धड़े को पैगाम दे रहे हैं PDM वालों को। अब उनकी ख्वाहिश एक और सुन लें, उनकी ख्वाहिश ये नहीं है कि PDM ने तो कहा है ना कि हम आपके मुकाबले में बंदा नहीं खड़ा करेंगे, वो एक और चक्करों में पड़ गए हैं, गेम थोड़ी सी बड़ी करना चाह रहे हैं। उनको पता है कि आज़ाद भी खड़े हो गए ना, हो सकते हो गड़बड़ हो जाए, बिल्कुल। वो ये कहते हैं कि नून लीग हमें यकीन दहानी करवाए, वो कह रहे हैं कि गल मेरी यूसुफ गिलानी ना ले, लेकिन मैंने श्योरिटी चाहिए नवाज शरीफ या कम से कम मरियम दी। वो इन चक्रों में है कि किसी तरीके से हम नून लीग में शामिल हो जाएं आइंदा इलेक्शन से कबल, और फिर ना सिर्फ शामिल ही ना हो, हमें टिकट भी मिले, और वो कहते हैं कि हम हटा देंगे फिर हफीज शेख को, बिल्कुल कोई मसला ही नहीं फिर तो, ठीक है ना। को टोटल 9 वोट चाहिए इनको, PTI और उसके इत्तेहादियों के जो वोट टोटल हैं उनमें से 9 वोट तोड़ लेंगे, 2 वोटों से 3 से वोटों से जीत जाएंगे। वो तो 15 आने के लिए तैयार हो गए बड़े। वो सुना है कि कुछ लोग तो कह रहे हैं कि शायद 12 ने बाकायदा रब्ता भी कर लिया है डायरेक्ट नून लीग से। ये अफवाहें हैं, बल्कि अफवाह प्लस है, ठीक है ना, क्योंकि 3-4 को तो मैं जानता हूँ जो कह रहे थे कि हमारा हो जाए रब्ता किसी तरीके से, तो 5-7 और बीच में डालने तो फिर वो पक्की खबर है। हाँ जी, बिल्कुल सर, ये अफवाह प्लस नहीं, ये पक्की खबर ही समझिए आप इसको, ठीक है, हो गई। इस तरह से मैंने कल आपसे कहा था, मैं आपसे एक हमारे व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनका कमेंट है टोबा टेक सिंह से ताल्लुक है उनका, उस पर आपसे बात करनी थी। उनका नाम है शकील अख्तर फ्रॉम टोबा टेक सिंह। जी। उन्होंने पूछा जी, अभी तो शहबाज शरीफ अंदर हैं, लेकिन जब शहबाज शरीफ साहब बाहर आ जाएंगे उसके बाद PDM मजबूत होगी या कमज़ोर होगी? यार ये हम इस पे कल ना मेरे कल हमजा के साथ इस पे बात कर ली थी, और तफसीली बात हमने की थी कि जब वो हमजा शहबाज शरीफ बाहर आएंगे ना, कंट्रोल बाजार चले जाएगा उनके हाथ में, मरियम के सुन लेना यार, नून लीग का उनके हाथ में चला जाएगा, कंट्रोल चल जाएगा, लेकिन वो ज़ुबान और लबो लहजा उनका वही रहेगा जो मरियम और नवाज शरीफ का है। जो भाई साहब हदायत देंगे, या जब बिल्कुल ही बुरे हालात थे ना शहबाज शरीफ के, और नून लीग बिल्कुल दबी हुई थी, प्रेशर इतना ज़्यादा था और राब्ते धड़ाधड़ हो रहे थे, उस वक्त की जो मुलाकात हुई थी ना जेल में, हमने बात बताई हुई है, उन्होंने कहा जी भाई साहब जो कहेंगे भाई साहब से बात कर लें, वही होगा। भाई साहब से बात करने का फ़ायदा ये होगा, भाई साहब ने अब 2 जर्नलों के नाम लेने छोड़ दिए जी, लेकिन बाकी वही चल रहा है। वो बाहर आएंगे, जमात को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसी है वैसी रहेगी। अगर उनके जेल में रहने से जमात कमज़ोर हो रही है तो उनके बाहर निकलने से भी कमज़ोर होगी। अगर जेल से बाहर आने पर मजबूत हो जाएगी, अगर मजबूत हो रही है उनके जेल में रहने, तो बाहर आने से भी मजबूत होती रहेगी, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनकी फैमिली में जो ऐसा है सर, वो नहीं मतलब पार्टी नहीं, PDM जो इत्तेहाद है अपोजिशन जमातों का, उसके मुस्तकबिल पे क्या असर होगा शहबाज शरीफ के आने से? वो इसी तरह इंटैक्ट रहेगा PDM या शहबाज शरीफ का जो माहदे होके हुए ना, अब नवाज शरीफ ने जो बातें की हुई है, वादे किए हुए हैं, हाँ जी, ठीक है ना, जैसे मसाके जमहूरियत हुआ था उसमें अब जो वादे किए उसका पाबंद हैं आपके नवाज शरीफ साहब, नहीं शहबाज शरीफ। और आपके ख्याल में कि इनको एतमाद में लिए बगैर सारा कुछ हो गया? इनको एतमाद में लिया गया है। छोटे भाई को कितना एतमाद में नहीं, तो बताया जाता है कि यार ऐसे नहीं, वो
एक ताबेदार किस्म का भाई है, तुम्हारी तरह नहीं है। सर मैं यही कह रहा हूँ ना, ताबेदार भाई मेरे जैसे ही होता है ना कि ठीक है बड़े भाई ने कह दिया तो वो ठीक है जी। नहीं वो एक अच्छा। ताबेदार भाई है। जी। और उसकी ये सर्वाइवल भी इसी में है, पॉलिटिकल सर्वाइवल इसी में है कि भाई साहब जो कहते रहे, आप ये बताएं कि अगर नून हटा के शीन लग जाए हाँ। तो क्या होगा? जिस तरह जो काफली है वही हाल रहेगा वो फिर। भाई वो समझदार लोग हैं, हाँ। वो इकट्ठे रहेंगे। कल हमने इसमें तफसीली बात की, जो अगर नून लीग मजबूत रहेगी, नून लीग के कोई फर्क नहीं पड़ता, पीडीएम भी उसी तरह होगी ओके उनके बाहर आने से। ठीक है सर। इसी तरह का एक और सवाल है, काका जी नाम है उनका, उन्होंने पूछा जी अभी तो राणा सनाउल्लाह साहब मरीम नवाज के साथ चल रहे हैं, तो शहबाज शरीफ के बाहर आने के बाद राणा सनाउल्लाह और उन जैसे जो शहबाज शरीफ ग्रुप के लोग थे उनका क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप? यार वो ख्वाजा आसिफ किसके बंदे थे? वो कहाँ है? अंदर है अंदर है। वो किसके दोस्त थे? शहबाज शरीफ के। क्लास फेलो किसके थे? नवाज शरीफ के। नवाज शरीफ। देखे ना कैसी अजीब बात है यार। ये है ना, एक जो उसका नुक्ता नजर ना राणा सनाउल्लाह का, हाँ जी, वो शहबाज शरीफ से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसके ठीक। बावजूद एक ग्रुप यारी दोस्ती है, बिल्कुल। क्योंकि बड़े मियाँ साहब तो इनको इतना ने ना लिफ्ट करवाते थे हाँ जी, हर हाँ, वक्त। मियाँ साहब के, शहबाज शरीफ के तो वो कमरा है, वो उसमें ख्वाबगाह में भी जा सकते हैं। हाँ अच्छा ठीक है ना। बड़े मियाँ साहब उनको वो नहीं होते, उसलिए लग रहा था कि उनकी यारी है। लेकिन वो सारे इन सबको पता है कि मियाँ नवाज शरीफ के बगैर नून लीग और हम सब कुछ नहीं है। ठीक है ना। ठीक है। अब ये भी नहीं कि मियाँ साहब एक अलग जमात बना ले तो वो ऊपर चढ़ जाएगी। ये इकट्ठे रहेंगे एक तो दूसरे की मजबूरियाँ होती हैं यार, मोहब्बतों की, और मिलजुल के वो पे जा सकते हैं। सर आखिरी मामला ये है कि ये जो NA-75 वाला मामला है, इसमें अब हुकूमत ने अपील में जाने का फैसला कर लिया अदालत में। यार वो तो वहाँ अंदर की खबर मेरे ख्याल तू ही बता रहा था मुझे, इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन के कल वाले, ठीक है ना। तो वो वहाँ पे जो राजा सिकंदर सुल्तान साहब हाँ हैं, जी, तो दो अरकान ने ये कहा जो पंजाब से नहीं है हाँ जी, उनमें से, और उन्होंने ये कहा कि जनाब ये कुछ ज़्यादा सख्त नहीं हो गया हाँ, 20 हल्के का। हाँ, उनके भाई फैसला तो नहीं था है, हाँ, तो मैं तो सुप्रीम कोर्ट में भी डट गया हूँ। बिल्कुल। तो यहाँ भी ये है, जान अल्लाह को देनी है, ओहदे आने जाने होते हैं, इनको हटाना भी इतना आसान नहीं होता ना। इनका मामला भी सुप्रीम जस्टिस में जाना होता है। बिल्कुल। हर बंदा को हुकूमत नहीं हटा सकते इनको। हाँ। इसीलिए तो ये होते इनके जो हटाने के लिए तरीकाकार दिया गया होता है ना, वो इसलिए सख्त होता है कि इंडिपेंडेंटली फैसले करें, बिल्कुल। और इंडिपेंडेंटली वो कर रहे हैं। और अगर अपील में ये जा रहे हैं, हुकूमत नहीं जा रही अपील में, उनको असद मल्ली से कहा है ठीक है कि आप अपील में जाएं। ठीक है अगर वो अपील तो इसकी होती नहीं है, रिट होती है। रिट पिटीशन दायर होगी, ठीक है, कि वो हाई कोर्ट में भी हो सकती है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जैसे मेरा ख्याल है कि हाई कोर्ट जाएंगे। बिल्कुल। और वो भाई जी, इसका मतलब ये है कि वो जो उसने ऑब्जर्वेशंस दी हैं कि मुनसफाना माहौल नहीं था, माहौल ऐसा नहीं था कि लोग आज़ादाना अपने हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकते। और ये जो आपके ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, इनकी गड़बड़ है और इनको आइंदा इलेक्शन में नहीं होना। और उन्होंने चीफ सेक्रेटरी और IG को भी बुलाया हुआ है। इसका मतलब ये जो ताने बाने अगर जो हैं, ये जो टांडे जो हैं, वो मिलते हैं जाके बुज़दार से और इमरान से। ठीक है ना। तो अब और करप्शन हुई है, करप्ट प्रैक्टिस का आपको अंदाज़ा हो रहा है सामने। तो फिर इसका मतलब यह है कि असद मल्ली साहब जो हैं, वो मैदान में मुकाबला करने की बजाय अदालत के कंधे पर रख के कुछ स्टे टू लेने की कोशिश करते हैं। स्टे हो भी जाए तो अदालत ये तो ऐसा कह दे कि आप फौरी तौर पे अनाउंस कर दें, वो तो और लंबा हो जाएगा। तो वो इसलिए, इसका मतलब ये है कि करप्ट प्रैक्टिसेस को ये तफवीज़ देना चाह रहे हैं। ये जो ब्यूरोक्रेसी ने की है, धारा ब्यूरोक्रेट भी तो कहते होंगे ना कि भाई साहब आपने जो हमारा रगड़ा निकलवाया है तब हमें बचाएं। वो कहते हैं हम अदालत में जा रहे हैं, ठीक है ना, आप तो ना जाए, चलो हम जाए। हो सकते हैं वो मुतासरा फरीद तो वो भी है ना, ब्यूरोक्रेट्स भी, वो कहें ना हमने तो कोई नहीं ईमानदारी से की है, वो भी अदालत में जा सकते हैं। वो हमारे खिलाफ जो यानी ऑब्जर्वेशंस हैं वो हज़फ कर दी जाएँ, ये हो सकता है। लेकिन ये है कि वो, इसका मतलब ये है कि हुकूमत जो है वो तफवीज़ देना चाहती है उस तमाम धांधली को, इसलिए वो अपनी चोरी पर पर्दा डालना चाहती है। सर हमारे एक सब्सक्राइबर है मोहम्मद आजम, उन्होंने पूछा जी अगर चीफ सेक्रेटरी और IG इलेक्शन कमीशन में जाके बयान दे दें कि उन्होंने सारी कार्रवाई इमरान खान और उस्मान बुज़दार के कहने पे की, तो उनके खिलाफ भी कोई एक्शन होगा? यार ये तो ना उनके मुराद यानी कि बुज़दार और इमरान खान, पहली बात ये वादा माफ गवाह बनेंगे ना IG और चीफ सेक्रेटरी, ठीक है ना।
اور وعدہ معاف گواہ کی پتہ نہیں گنجائش ہے بھی نہیں، یہ عدالتوں پہ ڈپینڈ کرتا ہوتا ہے کہ وعدہ معاف گواہ کو معاف کرنا ہے یا نہیں کرنا، اور اس کی بات پہ کس حد تک یقین کرنا ہے. کیا دیگر شہادتیں جو ہیں وہ وعدہ معاف گواہ کے بیان کی تائید کر رہی ہیں؟ یہ ساری قانونی پوزیشن ایک ہوتی ہے. ٹھیک. اول تو یہ ہمارے ملک میں اخلاقیات کا معیار اتنا بلند نہیں ہے کہ چیف سیکرٹری اور آئی جی عدالت میں جا کے سچ بول دیں گے. ٹھیک ہے نا، مبینہ سچ. اور پھر وہ اتنے تگڑے بھی نہیں ہیں، ابھی نوکری کے 4-5 سال پڑے ہوئے ہیں ان کے، تو وہ انہوں نے نوکری شوکری کرنی ہے. چلو پولیس کی لائن لگ جائیں گے، وہ سپریم کورٹ آپ کہتے ہیں الیکشن کمیشن کیا کرتے ہیں. لیکن جو کرپشن ہے نا وہ یہی ہے کہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال. اگر یہ ہوا ہے اور یہ ثابت ہو جائے اور وہ کہہ بھی دے حالات واقع، تو ان کی اقبالی جرم جو اقبالی بیان ہوگا اس کی تائید کر رہے ہیں نا. بالکل. تو پھر بھائی جی وہ آ جائیں گے کرپشن میں ان کی، اور وہ پکڑے جائیں گے. پھر ٹھیک ہے، باقی پکڑے اقامہ اور بن سکتا ہے کیا وہ کیا اقامہ اور پنامہ والے جو ہو سکتے ہیں، یہ اس سے یہ بھی اسی طرح اختیارات کا ناجائز استعمال ہے. ٹھیک ہے نا، یہ کوئی قانونی کام تھوڑا کیا. بالکل. ٹھیک ہو گیا سر، آج تک کے لیے اتنا ہی. آپ نے سن لی تمام معاملات پہ چودھری صاحب کی رائے. آپ کی کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.